Hi, good evening, everyone. Let's wait for a couple of more minutes for everyone to join in. Good night ही कर रहे हो तुम तो सोने जा रहे हो क्या? Hi Purna, hi Astha. Good evening, Ayur. All right, so last class में हम लोगों ने I think electronic configuration देख लिया था. And I had spoken about the rules in which we used to describe the electronic configuration. And then we practiced some examples of electronic configuration of atoms as well as their ions. Right. ठीक है, फिर इसके ऊपर होमवर्क नहीं दिया था मैंने आपको. मैं आपको आज होमवर्क दूंगा which will be based on the configuration related questions. लास्ट में हाँ हम लोग exceptions के बारे में बात कर रहे थे. ठीक है, तो let's pick up our discussion from this itself. Right. ठीक है. So आज मैं आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस. ठीक है, एडवांस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन लगेगा which I would take in a couple of classes next week as well. ठीक है. अच्छा, इन द मीन टाइम आप लोगों ने आई होप मोल कंसेप्ट की प्रैक्टिस नहीं छूट गई हो. ठीक है, मैं एक असाइनमेंट भेज दूंगा मोल कंसेप्ट का for you guys to practice in parallel. ठीक है. All right, so आज का डिस्कशन शुरू करते हैं. I think most of the students have joined in अभी तक. So last class में as we were discussing about the electronic configuration part, I had spoken about this example of chromium and copper. ठीक है. And based on that, क्या पूछ रहे हो प्रथमेश? टेस्ट कौन सा टेस्ट? आप लोगों का कोई टेस्ट है? So are you asking or are you telling I'm confused? हाँ, टेस्ट तो होगा ही सही ना आपका थोड़े टाइम में. आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट्स येट, बट हाँ डेफिनेटली होगा. ठीक है. All right. So as I said in the last class that when we are going to talk about this
exceptional electronic configuration के examples, it is important for you to understand that you are not going to be asked to predict such exceptions in electronic configurations. All you need to do is remember the important ones that I'm going to highlight. So in front of you in last class, I highlighted these two examples of chromium and copper and talked about what the configuration should be as per the rules and what is the actual configuration that is found. In case of copper also, we did the same. Now, similar to this, there are other examples also in which we have found that configuration does not exactly match what these rules set out to be. There are some deviations, there are some minor changes that happen. Now, what is the explanation that goes behind these exceptional configurations? ध्यान से यहाँ पर समझना, ठीक है? So let me first write it down, then I'll also help you understand this in more detail. Commonly, such exceptions are attributed to extra stability of half-filled and full-filled subshells. Now, as you can see in the example of chromium, between the two comparisons, this actually found configuration has a half-filled D subshell. Instead of partially filled D subshell in copper, what we find is that there is a fully filled subshell of D. Now, as I said, that similar to these, there are other exceptions also, jahan par this kind of behavior or this kind of pattern is noticed. And an explanation that comes with the extra stability of these half-filled and full-filled subshells is in the following manner. So यहाँ पे आप observe करना. The first reason that is given is symmetrical distribution of electrons The second reason that is given is exchange energy. These are two important attributes that are highlighted. Now, if you remember when I talked about the explanation in NCERT, how it goes ahead to highlight this is in the following manner. यहाँ पर आप observe करना. So let me take the explanation directly.
which is mentioned. Instead, let me directly pick up the words right there from NCERT only. So the first reason that I spoke about is that symmetrical distribution of electron. Now, because the orbitals have the same energy in the 3D subshell, right, and all these d orbitals have different spatial orientations. So what happens is that if they are symmetrically distributed, then there is this concept of shielding that gets reduced. Now, what is this concept of shielding? In a multi-electron atom, what happens is that you have nucleus at the center, and around the nucleus you have inner electrons. Okay, there are a bunch of inner electrons, and there are valence electrons. Valence electrons, we call them as outer electrons. Now, what happens is that these inner electrons, they kind of screen or shield the nuclear charge. These outer electrons, okay, they do not experience the complete nuclear charge because the inner electrons screen or shield the nucleus. Now, as a result of which, ये जो outer electrons हैं, they will experience lesser than expected attraction from the nucleus, and that is why when we talk about removal of electrons, जब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे cations को फॉर्म करना है, तो we say that the outer electrons are removed first. ठीक है? Now, what happens in case of a symmetrical distribution, what it is talking about is that in case of symmetrical arrangement of electrons, okay, what happens is that the electrons in the 3D subshell, they themselves do not shield each other much. Okay, their shielding of one another, it is relatively smaller. जैसे यहाँ पर हम लोग observe कर रहे हैं, when we talk about say chromium का configuration, so chromium का configuration में these 3D electrons, when they are distributed symmetrically in the d subshell, right, कोई dxy में होगा, कोई dyz में होगा, कोई dxz में होगा, right, they tend to have a lesser shielding effect on one another, and because of that lesser shielding, the nucleus का attraction force on these electrons is stronger. And if nucleus का attraction force is stronger, right, we say that the system is more stable. Now, the second reason that is attributed to this extra stable half-filled configuration or full-filled configuration is something that I have also spoken before. ठीक है, last class में मैंने बात करा था about this concept of exchange energy. Right? When the electrons are present in orbitals,
which are of equal energy, right? These electrons can exchange their positions with each other. And this leads to a release of energy. ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी मतलब ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी and it will make the system more stable. So in case of half filled or completely filled subshells, these numbers of exchanges are maximum. And as a result, the relative stability of the atom increases. Now, having said this, okay, one of the common doubts that comes in the minds of students, okay, यहाँ पर आप observe करना, is the fact that do we take this into account while writing electronic configurations, right? Because last class when we did the practice of writing electronic configurations, we did not talk about this concept of symmetry, this concept of half filled, full filled. But if this is an important factor, then we should also take that into account while writing the configurations. Now the thing is that it is not that simple. It is not that easy of a factor to be captured beforehand and then incorporated in the rules. That is why it is not something that you are going to be expected to predict कहाँ पर exceptions होंगे. जैसे for example, ठीक है, यहाँ पर notice करना, if I ask you to write the electronic configuration of chlorine, ठीक है, you might encounter this situation. ठीक है, when you are going to fill these 17 electrons of chlorine, right? 1, 2, 3, 4, 5. Just a second. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Right? So you might say कि अरे यहाँ पर P सबशेल को फुलफिल करना है, उसके लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो similar to how we did in chromium, let's not fill electron in the 3s, rather fill the electron in 3p. Right? And then provide the same set of reasons that we spoke about just above and justify this as the correct configuration. Now understand, this is not the correct configuration of chlorine. The configuration that is found is this only as per the rules. Now why is it that यहाँ पर electron jump नहीं करा, as in it is not there in 3s, sorry, it is there in 3s but not in 3p? Because of the fact that what exists is the most stable configuration corresponding to the least energy. Now if you are going to take an electron from 3s to 3p, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो. ठीक है, आपने 3s से 3p में इलेक्ट्रॉन को पुश करा, ठीक है, आपने एनर्जी इंक्रीज कर दिया. Now what it resulted in was increased number of exchanges. ठीक है, पहले यहाँ पर अप स्पिन का एक ही एक्सचेंज हो पा रहा था, अब से 2 एक्सचेंज हो पाएंगे जो अप स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो देयर इज an amount of increase in exchanges
which will result in release of exchange energy, which will bring the overall system ka energy down. But maybe in this case, the energy that is released, okay, as a result of which the decrease in the overall energy is not that great. It is not something which compensates the energy increased that you have when you took the electron from 3s to 3p. And that is the reason why we do not find this configuration. Okay, we find the configuration that is as per the rules only. Now, definitely, right now, आप लोगों को energy of orbitals तो निकालना आता नहीं है. Exchange energy का calculation तो भूल जाओ, वो भी आपको नहीं आता है. So nobody is going to ask you to quantify and do this kind of calculation, that calculate how much energy change will take place if we have this configuration versus that configuration. So numerically तो आपसे कोई पूछने नहीं वाला. All I am saying is, or all I am justifying is that in many cases we do not find such jumps happening, we do not find such exceptions happening, because maybe the increased exchanges that could be happening would have not compensated enough for the increase in the energy of taking the electron from a lower energy orbital to a higher energy orbital. जैसे यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे क्रोमियम के केस में, ठीक है, इन दिस सिनेरियो, ठीक है, इफ यू काउंट द नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर्स, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक्सचेंजेस होंगे. सो इफ यू डू द काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर्स, you will find 3 plus 2 plus 1, 6 exchanges or 6 exchange pairs that are possible. ठीक है, कैसे करा काउंटिंग? ये सिंपल क्रूड काउंटिंग करा मैंने, मैं दोबारा से समझा देता हूं. कैसा? ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले के साथ में, तीसरे वाले के साथ में और चौथे वाले के साथ में एक्सचेंज कर सकता है. तो 3 एक्सचेंज पेयर ही हो गए. अब मैं इस वाले की बात करता हूं. ये इसके साथ तो मैंने काउंट कर लिया ऑलरेडी, सो आई शुड नॉट डबल काउंट दिस एज अ पेयर. तो सेकंड वाला कैन एक्सचेंज विद थर्ड वाला एज वेल एज फोर्थ वाला, तो उसकी वजह से 2 एक्सचेंज पेयर हो गए. एंड देन ये फोर्थ वाला फिफ्थ वाले के साथ में कर सकता है एक्सचेंज, एंड उसकी वजह से एक और एक्सचेंज पेयर. तो टोटल 6 एक्सचेंज पेयर्स आर पॉसिबल. नाउ in this second configuration that I have drawn for chromium, ठीक है, the number of exchanges increase substantially. ठीक है, यहां पर आप ऑब्जर्व करना. Now the number of exchanges would be 4 plus 3 plus 2 plus 1. ठीक है, amongst these 5 electrons, right? You can do the counting. ये पहला वाला इन 4 के साथ में कर सकता है, तो उसका 4 लिख लिया. फिर ये दूसरा वाला पहले वाले के साथ में तो कर ही सकता है, ऐसे हम लोग काउंट कर चुके हैं. फिर ये दूसरा वाला बाकी 3 थर्ड फोर्थ फिफ्थ के साथ में कर सकता है, तो उसके 3 मैंने काउंट कर लिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो देयर आर 10 एक्सचेंज पेयर्स here. Now maybe, ठीक है, we do not know the calculations because हमको calculations करनी आती नहीं है. Maybe it is happening in case of chromium that the exchange energy, because of the greater increase in number of exchange pairs, the overall exchange energy compensates for the increase in energy of electron going from 4s to 3d. ठीक है, 4s से 3d में definitely there will be an increase in energy that would have happened, but the exchange energy might have compensated for it. So as a net result, in case of chromium, we find or we see this is the configuration that is existing. This is what explains the experimental properties associated with chromium also. ठीक है, now अब आप समझना, this is
something that I exactly said, that we don't know how to do these calculations, and that is the reason you are not going to be asked to predict कहां पर एक्सेप्शन आएगा. ठीक है, तो अपने मन से आप एक्सेप्शंस कहीं पे भी मत डाल देना. आपको ऐसा लगे कि अरे एक इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर शिफ्ट करने में वी आर सीइंग दैट नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ रहे हैं, तो मे बी व्हाई नॉट दैट कॉन्फ़िगरेशन. द आंसर इज नो. यू आर नॉट द वन हु नोज और वर्क्स विद द एनर्जी कैलकुलेशंस. ठीक है. Now, apart from chromium and copper, there are a couple of more. In fact, there are many more. ठीक है, अगर आप टोटल काउंट करो एफ ब्लॉक मिलाकर, एफ ब्लॉक में तो बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे. ठीक है, जैसे जैसे आप हायर एटॉमिक नंबर की तरफ जाते जाते हो तो एक्सेप्शंस का प्रपोर्शन और एक्सेप्शंस का काउंट बढ़ता जाता है. बट विद इन डी ब्लॉक ओनली, ठीक है, यू विल फाइंड अ गुड नंबर ऑफ एक्सेप्शंस. एफ ब्लॉक में काफी सारे. ठीक है, एफ ब्लॉक के ऊपर हम लोग इतना फोकस नहीं करेंगे. सो व्हाट आई विल राइट हियर इज a few notable exceptions in D block. ठीक है, मुझे ये बाद में काम आएंगे जब मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा. सो क्रोमियम कॉपर तो हमने देख ही लिया. उसके अलावा आप देखना यहाँ पर यू विल हैव पैलेडियम, पीडी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 46. ठीक है, इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो क्रिप्टन के आगे आएगा. ठीक है, क्रिप्टन तक 36 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे. ठीक है, उसके बाद 5s में एंड फिर 4d में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे. ठीक है, एंड if you would write the regular configuration, so it should be 4s2 sorry 5s2 4d8. This is what the regular configuration should be. However, palladium के केस में what we find is that s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है. दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर d में आ जाते हैं so as to make up for a fully filled d shell. ठीक है, इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है. अब ये आपसे प्रेडिक्ट नहीं करवाया जाएगा कि पैलेडियम के केस में अरे 2 इलेक्ट्रॉन्स गायब हो गए इससे, तो दोनों के दोनों डी में आ गए. ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम यू एज आई सेड एज अ प्रेडिक्शन. आप ये याद रखना. ठीक है, सिल्वर इज अनदर नोटेबल एग्जांपल. इसका Z 47 रहता है. दिस इज जस्ट बिलो कॉपर. ठीक है, सिल्वर इज जस्ट बिलो कॉपर इन द पीरियोडिक टेबल. तो इसका एक्सेप्शन इज सिमिलर टू हाउ कॉपर का एक्सेप्शन इज. ठीक है, यहां पर ऑब्जर्व करना. इसका 47 एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन आप फिल करोगे तो क्रिप्टन के बाद में 5s एंड 4d फिल होगा. एंड 5s में 2 होना चाहिए था एंड 4d में 9 होना चाहिए था. ठीक है, एज पर द ऑफ बाउ रूल्स, एज पर द 3 रूल्स दैट वी हैव स्टडीड. बट होगा यहाँ पर 4s1, ठीक है, एंड 4d 10. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है इन केस ऑफ सिल्वर. ठीक है, देन 2 more examples. ठीक है, one is platinum and the other is gold. ठीक है, प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर 78 होता है एंड गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है. ठीक है, एंड इनका कॉन्फ़िगरेशन भी अगर आप खुद से लिख पाओगे तो ठीक है. आप खुद से ट्राई करना, अभी मैं क्या बताता रहूंगा.
नहीं मिलेगा तो ऑनलाइन तो मिल ही जाएगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, बट ये आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। एक बार रूल्स के थ्रू ट्राई करना एंड देन नोटिस करना एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा। तो यू विल अगेन फाइंड अ फुल्ली फिल्ड डी सबशेल बीइंग प्रेजेंट, ठीक है। So this is in addition to what we discussed yesterday, right? We spoke about filling up electronic configuration, and continuing with that, I talked about these exceptions to electronic configuration and the notable ones. Okay? The reasons highlighted here are the symmetrical distribution of electrons and the concept of exchange energy. Since these are not concepts in which you can get into much depth, the only superficial understanding which you can understand right now is the fact that because of half filled or full filled configuration, the number of exchange pairs increase substantially, and that can compensate for the increase in energy of the electron being shifted from a lower energy orbital to a higher energy orbital. Okay? And as I said, don't predict, remember these exceptions. तो क्रोमियम कॉपर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये 4 एक्सेप्शंस है, आप इस चैप्टर में नहीं याद करोगे तो चलेगा, ठीक है, इस चैप्टर में मुझे दिक्कत नहीं आने वाली है, बट गोइंग फॉरवर्ड जब हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर करेंगे तब मैं आपको वापस से एक्सेप्शंस याद करने के लिए बोलूंगा ही सही, वहां पर आई विल टेक दीज एज नोटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। इसके अलावा 2 और रहेंगे, लैंथेनम और एक्टिनियम का, बट वो मैं तभी बता दूंगा, मतलब और भी है एग्जाम्पल तो, बट नोटिसेबल 2 और रहेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, नाउ अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना, हाँ, जैसे सुमित भी मुझसे डाउट पूछ रहा है, लेट मी पोज दैट एज अ क्वेश्चन ओनली, ठीक है। हाँ, प्लैटिनम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं जंप करेंगे, मतलब पैलेडियम में जैसे 2 जंप कर गए थे वैसा प्लैटिनम में नहीं ऑब्जर्व होगा, एंड प्लैटिनम में इनफैक्ट you will not find fully filled D subshell also, that is 4d9, तो आप sorry 5d9, sorry not 4d9, 5d9, तो आप देखोगे, आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। नाउ एज अ क्विक प्रैक्टिस, ठीक है, ड्रॉ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, सुमित पूछ रहा है क्रोमियम 3+ आयन का, ठीक है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। What will be the configuration of chromium 3+ ion? ठीक है, एक्सेप्शंस यहाँ पे खत्म हो गए, इसके आगे एक्सेप्शंस नहीं है। नहीं, RNF में भी आते हैं एक्सेप्शन, हाँ, राइट हर्ष, नहीं रॉन्ग एलिना, आपने वही गलती करी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं करने के लिए बोला था। क्रोमियम 3+ आयन का पूछ रहा हूँ प्रथमेश मैं, हाँ राइट सुबोध, राइट सुमित, हाँ सानिका का भी सही है, पूर्णा का भी सही है, राइट श्रेयस का भी सही है, ठीक है, हाँ राइट राइट आस्था। सो इसमें अलीना आपने क्या करा, ये लास्ट क्लास में मैंने बोला था ना, ये चीज नहीं करनी है, ये चीज आप मिस आउट कर गए while writing the configuration of cation, ठीक है,
You write the configuration of atom first and then remove electrons. ठीक है, don't do this thing that you first remove the electron and then started filling in. वो गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है. So chromium as an atom का configuration मैंने आपको पढ़ाया. आर्गन 4s1 3d5 होता है. ठीक है, ये क्रोमियम एज एन एटम का कॉन्फ़िगरेशन है. अब आपको इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, राइट. सो आपने ये एक रिमूव करा, सबसे पहले 4s में से रिमूव होगा और उसके बाद d में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दो. ठीक है. सो दिस विल बी योर आंसर ऑफ क्रोमियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. हाँ, कुछ डाउट है हर्ष तुम्हें? पूछो. हेलो सर. हाँ, बोलो हर्ष. सर मुझे वो शील्डिंग इफेक्ट का शॉर्ट में कवर बता दो ना. शील्डिंग इफेक्ट को मैं अभी ज्यादा डेप्थ में नहीं कवर करना चाह रहा, बिकॉज हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में एक्चुअली उस पर काफी टाइम स्पेंड करेंगे. सी व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स ना. ठीक है, देयर इज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. ठीक है. अब जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, दीज आउटर इलेक्ट्रॉन्स दे डू नॉट एक्सपीरियंस complete nuclear charge. Why? Because of inner electrons. ठीक है, these inner electrons they shield the nucleus. Inner electrons they shield, or you can say screen the nucleus. Now as a result, what would happen? The stability of the atom, it kind of reduces, it decreases. Why? Because ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन था, ये जितना अट्रैक्ट हो सकता था, अट्रैक्शन होने से क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना. ये जितना अट्रैक्ट हो सकता था बाय द न्यूक्लियस, ठीक है, उतना अट्रैक्शन फोर्स से एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बिकॉज बीच में यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है. So what happens is that in case of this kind of a shielding configuration, ठीक है, जो 3D के इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में, ठीक है, यहां पर कैसा रहेगा? 1s 2s 3s 1s 2s 2p 3s 3p एंड थर्ड शेल के अंदर 3D. ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो 4s का होगा, फोर्थ शेल का, बट जो 3D इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आपस में वो एक दूसरे को कम शील्ड करेंगे. ठीक है, यहां पर डेफिनेटली ये वन अनदर वर्ड भी कैच है. ठीक है, आपस में जो 3D के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को कम शील्ड करेंगे बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो उसकी वजह से वो जो 3D इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल एक्सपीरियंस बेटर अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस व्हिच विल मेक द सिस्टम मोर स्टेबल. ठीक है. Now, coming back to another important result. ठीक है, आप लोगों को अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप नोटिस करना, इफ आई आस्क्ड यू अबाउट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 3. ठीक है, आर्गन के अंदर, आर्गन वाले कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जितने भी रहेंगे वो सब पेयर्ड अप रहेंगे. ठीक है. नाउ अब ऑब्जर्व करना that why I have been stressing on this number of unpaired electrons since last class. ठीक है, जब भी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको करवा रहा हूँ, एटम का पूछ रहा हूँ, आयन का पूछ रहा हूँ, मैं बार बार साथ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. सो
let's understand why I am focusing on it with the heading called magnetic properties. ठीक है, so आप लोगों को मैग्नेटिज्म एज अ प्रॉपर्टी तो पता ही है, ठीक है, उसका जो अंडरलाइंग रीजन होता है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है. So there are these carefully drafted statements which I wanted to use. So let me put the heading first. Magnetic properties, and then let me copy paste. All right. ये ऐसे वर्ड की तरह साइज नहीं बढ़ाएगा क्या? ठीक है. Let me increase the size manually, although I did not want to. ठीक है. I'll explain these statements one by one. ठीक है. Let me first talk about this. ठीक है. So यहाँ पर आप observe करना, I'm going to talk about magnetic properties of substance around us. ठीक है. अब यहाँ पर ध्यान से observe करना. Your understanding of magnetism, ठीक है, right now is based on observable, measurable objects around you. ठीक है. जैसे for example, you know that iron and its ores are magnetic in nature. ठीक है. There are these permanent magnets that we find, whereas some substances around us are non-magnetic. They don't show magnetic behavior. Now, what is responsible for the magnetic properties of substances? If you go to the very bottom of it, the answer is subatomic particles. ठीक है. And in those subatomic particles, primarily electrons. ठीक है. Protons and neutrons. So nucleus as a whole also has a contribution, but we say it is 1,000 times weaker, around 1,000 times weaker than the magnetic field or the magnetic properties because of electrons. So in this particular section today, I am going to talk about the magnetic properties at an atomic level. ठीक है. So यहाँ पर पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. Notice the first statement itself. All atoms have inherent sources of magnetism. ठीक है. All atoms. न्यूक्लियस की वजह से भी होता है. ठीक है. न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी वजह से भी होता है. बट प्राइमरीली इट इज द इलेक्ट्रॉन which is responsible for magnetic behavior. ठीक है. Now, why is the electron responsible for magnetic behavior? तो आप लोगों ने डेफिनेटली जूनियर क्लासेस में यू नो कभी तो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट देखा होगा जिसमें आप ऐसे एक सोलेनॉइड के थ्रू, ठीक है, करंट पास करोगे, राइट, तो इट कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड.
ठीक है, it can induce magnets का concept आपने पढ़ा होगा. So what we understand is that electricity and magnetism, ठीक है, they are related to each other, and when current goes in loops or circles, ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. ठीक है, नाउ ज्यादा विजुअलाइजेशन में नहीं जाऊंगा बिकॉज दैट इज समथिंग you will discuss when you will study the chapter of electricity and magnetism. So उसी तरीके से electrons, ठीक है, because of their orbital motion around the nucleus, they create a magnetic field. ठीक है, बाद में ये भी पता पड़ा जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, दैट स्टर्न गैलार्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उससे ये भी पता पड़ा था दैट अपार्ट फ्रॉम द ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन्स also have an intrinsic spin, जिसका मैंने आपको बताया था that you should not fall for the visualization of electron spinning about its own axis. ठीक है, ये उसका एक visualization दिया था, but this is kind of an incorrect visualization. Electron has an intrinsic spin which also produce a magnetic field. ठीक है, now अब observe करना as a second important statement, in most materials, ठीक है, the magnetic moment of electrons they cancel out. ठीक है, why? Because you would have noticed these electrons and their orbitals, they are symmetrical around the nucleus. ठीक है, and if we talk about electrons ka spin, we also find that these electrons, when they are present in an orbital, they have opposite spins. So in most of the atoms, what we find is that magnetic moment of the electrons cancel out. But जहां पर unpaired electrons है, ठीक है, जहां पर unpaired electrons है, वहां पर the cancellation is not complete. Like जैसे मैं यहाँ पर ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूंगा, कोई सा भी आप एग्जांपल लो, ठीक है, तो इसमें अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पेयर्ड अप है, ठीक है, पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे का मैग्नेटिक इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे. बट जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, बिकॉज इट हैज नो काउंटर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड इट, ठीक है, दिस will actually contribute to magnetic properties of the atom. ठीक है, हम लोग एटम के स्केल पे बात कर रहे हैं अभी. Now based on this presence or absence of unpaired electron, we find the response of an atom to be different. जैसे आप ऑब्जर्व करना, अगर किसी एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यू टेक हीलियम, राइट, यू टेक नियॉन, राइट, इनके अंदर, ठीक है, मैग्नीशियम ले लो, ठीक है, मैग्नीशियम के अंदर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है मैग्नीशियम एटम के अंदर, if you draw the configuration of it. Now what happens is that such atoms, when they are exposed to an external magnetic field, ठीक है, इनको एक external magnetic field के सामने expose करेंगे, तो what happens is that they are weakly repelled, ठीक है, quite weakly, but they are repelled, something not observable to human eye, ठीक है, this is so weak that you can't see it by a human eye. For all practical purposes, you will say that magnesium is non-magnetic, ठीक है, but technically speaking there is nothing like non-magnetic. Technically when magnetism is taught, you will come across different words, but you will not come across something called as non-magnetic.
ठीक है, वो तो रियल लाइफ में हम लोग बोल देते हैं कि यार कुछ ऑब्जर्वेबल दिख ही नहीं रहा है तो नॉन मैग्नेटिक है, बट there is a very faint response that is still there which is called as diamagnetism. ठीक है, and notice करना that this is a property of all material. ठीक है, ये मैं थोड़ी देर में दोबारा फीचर करवाऊंगा. ठीक है, एक बार के लिए अभी कंफ्यूज हो जाओगे. आई विल टॉक अबाउट दिस अगेन, ये ऑल मटेरियल वाला कॉन्सेप्ट. बट जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, वहां पर what we see is that when an external magnetic field is applied, the substance shows weak repulsion. ठीक है, quite weak repulsion. What do we call such substances? We call such substances as diamagnetic substances, and we call this property as diamagnetism. ठीक है, in case there are unpaired electrons present in the configuration, ठीक है, what we observe is called as paramagnetism. ठीक है, what is paramagnetism? Paramagnetism is still weak, but it is stronger than diamagnetism. ठीक है, it is still weak, quite weak to be observed via naked eye, via lack of sensitive instrument. This is still something which is weak, but stronger than diamagnetism. And what it does is, because of the presence of this unpaired electrons, what we see is that the substance gets attracted towards an externally applied field. We call this paramagnetic behavior. ठीक है, this is something that is an understanding at an atom level. ठीक है, now this is not something which will directly map to your understanding at a larger scale. ठीक है, at a collection of atoms or solids. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको ये एक नीचे नोट करके लिखवाया हुआ है दैट आप क्रोमियम के बारे में ऑब्जर्व करोगे तो क्रोमियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो मैंने आपको यहाँ पर ऊपर दिखाया क्रोमियम के कॉन्फ़िगरेशन में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, देयर आर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज अ large number for an atom to have. So the atom is quite magnetic, but the solid, ठीक है, chromium solid as a collection of atoms, that is something which is found to be not showing substantial magnetic behavior. ठीक है, इनफैक्ट क्रोमियम को हम लोग बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक. क्या होता है वो थोड़ा सा आगे की स्टडी है, वो थोड़ा सा आगे का डिटेल्स है. ठीक है, दैट atomic level पर you understood the concept of magnetism. Now what happens is that when atoms are present as a collection, it may also happen that atoms can together align so as to produce a larger magnetic effect. ठीक है, or it may happen that in atoms the alignment can be random and kind of cancels out. ठीक है, different atoms का alignment cancels out and as a result there is no net observed magnetic effect. ठीक है, so this is something which happens at a solid का level, at a larger scale. This is something that you will be studying when you will be studying solids. ठीक है, but क्योंकि इस chapter में we don't actually want to venture into that detail, so we will restrict ourselves to an understanding at an atomic level only. ठीक है, so ये concept समझ में आया of magnetic properties of matter, and that too we are only understanding at an atomic scale right now. ठीक है, now as part of a numerical associated with this, ठीक है, आपसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करवाई जाती है एंड साथ में sometimes you are also asked to calculate spin magnetic moment. ठीक है, क्या होता है ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट? सो पहले मैं मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात कर लेता हूं.
ठीक है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, दिस वर्ड मैग्नेटिक मोमेंट इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स, ये मैंने आपको आई थिंक लास्ट टाइम भी बताया था, इट इज द रेस्पॉन्स। ठीक है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हम किसका पढ़ रहे हैं? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हम पढ़ रहे हैं किसी एटम का या फिर किसी आयन का। ठीक है, सो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स इज द रेस्पॉन्स ऑफ द एटम और आयन to an external magnetic field। ठीक है, इसको हम लोग म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ यहां पर नोटिस करना, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट है, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है, तो क्या हो रहा है, उनकी स्पिन्स कैंसल आउट कर रही हैं। ठीक है, उनकी स्पिन कैंसिल आउट कर रही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो रहेगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, वो जीरो रहेगा। ठीक है, एंड इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, व्हेन n is not equal to 0, n is 1 2 or anything higher than that, remember the formula। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं, this spin magnetic moment is root n into n plus 2, where n is the number of unpaired electrons in the units of bm। bm is the unit of this magnetic moment called as Bohr magneton। ठीक है, आपको कन्वर्जन भी मिल जाएगा इसका इफ यू लुक फॉर इट, बट अभी रेलेवेंट नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। ऐसा यूनिट्स में भी आप इसका इंटर कन्वर्जन देख सकते हो, बट अभी के लिए you will have to remember this result, that how we calculate the spin magnetic moment। ठीक है, it is root n into n plus 2 bm। bm is the unit। ठीक है, this is the, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, unit of magnetic moment। ठीक है, now अच्छा, अब यहाँ पर क्या डाउट है तुम्हारा? एक सेकेंड, लेट मी, सत्या क्या पूछ रहे हो? इन द अबव एग्जाम्पल इट विल बी पेयर्ड, राइट? विच एग्जाम्पल आर यू टॉकिंग अबाउट सत्या? एक मिनट, लेट मी अनम्यूट यू। हाँ, बोलो। वो ऊपर पे अनपेड लिखा है ना, उसे पेड होगा ना सर, नीचे 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 थोड़ा नीचे और थोड़ा। हाँ सर इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ अनपेड उधर पेड होगा ना? हाँ, मतलब बाकी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है ना, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है। नहीं सर, आपने अनपेड लिखा है इसलिए डाउट हो गया बस। अच्छा अच्छा, ठीक। देन एक और किसका क्या डाउट आया? नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट, आज था मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट जस्ट फॉर एटम। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड फॉर एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज द ऑब्जेक्ट का रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इवन अ बार मैग्नेट, ठीक है, जो आप लोग कॉमनली मार्केट से खरीद के लेके आ सकते हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला, उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। व्हेन यू प्लेस इट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट विल हैव अ रिस्पॉन्स। ठीक है, व्हाट वुड दैट रिस्पॉन्स बी? उसका कैलकुलेशन, एक्चुअली उसको टॉर्क कहते हैं हम लोग। वो टॉर्क का कैलकुलेशन आप थोड़ा फिजिक्स में आगे पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, बट इट इज नॉट जस्ट फॉर एटम।
ठीक है. देन यश क्या पूछ रहे हो, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मैग्नेटिक मोमेंट? फिजिकल क्वांटिटी एज एन टॉर्क. टॉर्क का अभी टॉर्क समझ में आता है तुम्हें? रोटेशनल मोशन का थोड़ा आइडिया है तुम्हें? अभी नहीं है तो थोड़े टाइम बाद आ जाएगा जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे. ठीक है. ऑल राइट. सो नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस, तो इसमें आपको, ठीक है, आप बुकलेट में सॉल्व करोगे तो आपको ये क्वेश्चंस बार बार देखने को मिलेंगे जिसमें आपसे मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछा जाएगा. सो लेट मी टेक वन और टू क्वेश्चंस. डिटरमाइन magnetic moment of cobalt 3 plus ion. ठीक है. समटाइम्स इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं. कोबाल्ट, कोबाल्ट के आगे ब्रैकेट में ऐसे 3 लिख देंगे. ठीक है. दिस मींस 3 प्लस आयन. ठीक है. इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है इन बोर मैग्नेटॉन. फटाफट बताओ क्या आएगा. All right, let me check. अलग अलग आंसर आ रहे हैं कैसे? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए आपको. ठीक है. बार बार नहीं बताऊंगा मैं. 27. ठीक है. सो अगर आप कोबाल्ट एटम का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो क्या रहेगा, आर्गन 4s2 3d7. ठीक है. कोबाल्ट एटम का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा. ठीक है. नाउ यू हैव फिल्ड इन द एटम का कॉन्फ़िगरेशन. अब आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं तो आप कैसे करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव करोगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से. ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा, 4s0 3d6. so still how many number of unpaired electrons you have, 4, and as a result magnetic moment is √24 बोर मैग्नेटॉन. ठीक है. समझ में आया? सिंपल ये. ऑल राइट. एक और क्वेश्चन ट्राई करो क्विकली. इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. इसमें मैंने आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया है और पूछ रहा हूं कि आयन के ऊपर क्या चार्ज होगा. ठीक है. ऑफ वेनेडियम एटम. ठीक है. वेनेडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए आपको. नहीं पता है तो इट विल बी 23.
ऑलराइट, किस किस का आंसर आ गया? हाँ, ऋग्वेद का सही है, शेखर नहीं, आपका सही नहीं है, प्रथमेश का सही है, केदार, हर्ष, रुद्र गड़बड़ है। नहीं, तनीषा आपका भी सही नहीं है, मानस आपका भी सही नहीं है। ठीक है, अप्रोच कैसा, मैंने आपको बोला जब भी कटायंस का केस आएगा आप कैसे हैंडल करना शुरू करोगे? सबसे पहले आप एटम का लिखो कॉन्फ़िगरेशन, वेनेडियम, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा? आर्गन, फिर 4s2 3d3। ठीक है, ये वेनेडियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 हो गए, और मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे आप तो ये √15 बोर मैग्नेटॉन आएगा। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट समथिंग विच इज मैचिंग टू आर ऑप्शन, एंड डेफिनेटली ये वेनेडियम एटम का नहीं है। अब आप ऑब्जर्व करना, इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ फॉर वेनेडियम प्लस आयन, ठीक है, तो वेनेडियम प्लस आयन का कैसा रहेगा? आई विल रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, कहां से रिमूव करूंगा मैं? 4s से, तो यहाँ 4s से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, ये 4s1 हो गया। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए? n विल बी 4, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी नाउ √24 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, अभी भी नहीं मैच करेगा। वेनेडियम 2+ के केस में देखूंगा, वेनेडियम 2+ के केस में लेट मी अगेन ड्रॉ द कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, कहां से करूंगा? दोनों s से रिमूव करूंगा। ठीक है, तो वापस से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 3, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया √15 बोर मैग्नेटॉन, ये भी नहीं वर्क कर रहा। ठीक है, देन कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, अब वेनेडियम 3+ का मैं लिखता हूँ, आर्गन। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3d से रिमूव होगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 रह गए, और ये √8 बोर मैग्नेटॉन आ गया। ठीक है, इनफैक्ट हाँ, माय बैड, मैंने एक्चुअली गलत कैलकुलेशन कर लिया था। ठीक है, V4+ मैं जब करूंगा तो मेरा आंसर अब मैच करेगा। अब इसमें से एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, एंड द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी √3 बोर मैग्नेटॉन, विच मैचेस विद माय आंसर। ठीक है, स्टार्टिंग में टाइम लग रहा है, मैं क्योंकि डिटेल में आपको इलेबोरेट कर रहा हूँ, अदरवाइज आप शॉर्ट में भी फास्ट ही आंसर कर सकते हो। ठीक है, बार बार ऐसे पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, मैंने आई थिंक, सॉरी गाइस, मैंने आप लोगों के आंसर को गलत बोल दिया स्टार्टिंग में, मैंने खुद ने हवा में मिस कैलकुलेशन कर लिया था, इसीलिए पेन चलाना चाहिए, हवा में करने से आंसर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, सो डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। V+4 स्टेट में जब होगा तो कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होगा कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट √3 बोर मैग्नेटॉन आएगा। ठीक है, ऑल राइट, नाउ with this we have covered now another important result of quantum mechanical model of atom. ठीक है, अब एक और रिजल्ट है
जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। दिस विल बी द फोर्थ important result, which is actually something in addition to the first result only. First result मैंने आपको क्या बताया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में? विजुअलाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट वाज क्वांटम नंबर्स एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट वाज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो फॉर द पास्ट 3 लेक्चर्स हम एक एक रिजल्ट एक एक लेक्चर में देखते जा रहे हैं, डिटेल में समझते जा रहे हैं, ठीक है। इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करे होंगे। You will find that the questions are quite easy to work with. अब एक और important result है, ठीक है, the concept of nodes, which right now I will teach or I will talk about in a superficial manner, ठीक है, so as to give you the mains के लेवल का perspective, ठीक है, कि मेंस के लेवल के हिसाब से कितना इंफॉर्मेशन जरूरी है वो आप याद रखो। फिर इसकी डिटेल्स क्या होंगी, इसकी डेप्थ में हम कैसे जाएंगे, उसके लिए देन आई विल बिगिन अ डिटेल्ड इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को थोड़ा सा हाई फाई कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा बट समथिंग एडवांस के पर्सपेक्टिव से आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। सो अभी मेंस के पर्सपेक्टिव से देख लेना, ये एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स है which is called as nodes, and इसमें before I start, ठीक है, before I talk about this, यहाँ पर nodes का concept है, ठीक है। node are node or nodes, ठीक है, they are defined for an orbital, ठीक है। sometimes I have seen students using terms like अरे हाइड्रोजन एटम में कितने नोड्स होंगे, या सेकेंड शेल में कितने नोड्स होंगे, या थर्ड शेल में कितने नोड्स होंगे। दैट इज एन इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन, ठीक है। नोड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो डिफाइन ऑर्बिटल के लेवल पर हो रहा है। एक ऑर्बिटल के लिए नोड्स डिफाइन होंगे। कल को अगर आपसे कोई पूछ ले कि n इक्वल टू 2 शेल में कितने नोड्स होंगे, तो वो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। नाउ व्हाट इज नोड, यहां पर आप ऑब्जर्व करना, nodes are regions, ठीक है, and to be technically correct they are surfaces, nodes are regions or surfaces where probability of finding an electron is 0, ठीक है। so this is something which is an interesting outcome that came specifically in quantum mechanical model of atom. इसके पहले बोर्स मॉडल या उसके पहले जो भी मॉडल्स थे उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करा जा रहा था। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में जब इक्वेशंस बनाई जाती हैं, सॉल्व करी जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, तो साथ में ही एक नेचुरल आउटकम आ जाता है दैट देयर आर रीजन्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, फॉर अ गिवन ऑर्बिटल where electron is not likely to be found. Now
ध्यान से सुनना. When I'm going to teach you about nodes, when I'm going to help you visualize them or see them, आप समझ जाओगे, आपको डायग्राम्स एंड ऑल भी याद रह जाएंगे. बट ये सब पढ़ने के बाद में, पूरा डिटेल डिस्कस करने के बाद में भी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाई डिड वी इवन टॉक अबाउट दिस. मतलब जैसे बोर्स मॉडल के बारे में बात कर ली, तो बोर्स मॉडल में ऐसा बताया गया था कि n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, देयर विल बी पर्टिकुलर ऑर्बिट्स, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन वुड बी प्रेजेंट, बीच में नहीं प्रेजेंट होगा. बट वी डिड नॉट इवन थिंक ट्वाइस अबाउट दैट इज देयर सम significance of it, that electron is not present in some region. We didn't actually. And similarly, जब हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को मैं जस्ट एज एन एग्जांपल बता रहा हूं. जैसे हम लोग मान लो पी वाई ऑर्बिटल के बारे में ऑब्जर्व करेंगे. ये पी वाई ऑर्बिटल का डायग्राम रहेगा, ठीक है. तो पी वाई ऑर्बिटल में हम अभी थोड़े टाइम में देखेंगे दैट द एंटायर एक्जेड प्लेन, ठीक है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, द एंटायर एक्जेड प्लेन वुड बी अ नोड. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन यहां मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां मिल सकता है, ठीक है. यहां पर मिलने का हाई चांस रहेगा बिकॉज इट इज इनसाइड द ऑर्बिटल. यहां बाहर मिलने का चांस कम रहेगा बिकॉज इट इज आउटसाइड द ऑर्बिटल, ठीक है. इट इज लेस लाइकली टू बी प्रेजेंट है, इट इज हाईली लाइकली टू बी प्रेजेंट इनसाइड दिस रीजन, ठीक है. यहां नीचे मिल जाएगा, बट ये एक्स वाई प्लेन पे, सॉरी एक्जेड प्लेन पे नहीं मिलेगा. देयर विल बी no probability of finding an electron on this exact plane. Now definitely एक एटम के, इंडिविजुअल एटम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, हम लोग इस नोट का इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाएंगे. बट ये नोड का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और इसके पीछे जो अंडरलाइंग रीजंस हैं, दैट will actually be something helpful when we will study the chapter of chemical bonding. It will in fact be one of the important reasons for answering a question that why H2 exists and why we do not find He2. Why does hydrogen form a bond with each other, but why helium and helium we don't find forming a bond, ठीक है. एंड वो डबलेट ऑक्टेट वो सब रीजन भूल जाना, वो सब नहीं करने वाले हम लोग अब थोड़ा वो भी करेंगे. बट जैसे बिल्टअप है पुरानी थ्योरी से नई थ्योरी, तो जो नई थ्योरी है विच आंसर्स आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स, दैट इज बेस्ड ऑन these orbitals only. So ये नोड का कॉन्सेप्ट आपको बाद में हेल्प करेगा to understand bond formations, to understand how when atom and atom come close to each other, what kind of overlaps of orbitals happen, ठीक है. So that is where as part of syllabus, ठीक है, as part of common syllabus, it was decided that nodes को 11th क्लास के इंट्रोडक्टरी लेवल पर इंक्लूड करा जाए, ठीक है. अदरवाइज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट इन इटसेल्फ.
मतलब जो स्टूडेंट्स हायर साइंस पढ़ते हैं उनको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में मतलब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ही पढ़ाते जाते हैं बिकॉज इट इज सो वास्ट. यहाँ पर when we are there in 11th class, there are some introductory concepts that have been kept, some introductory results have been kept so as to make sure that their connection with some important topics are talked about. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर this concept of node is something which is going to be important when we are going to discuss bonding. ठीक है, अभी के लिए आपको बस बता दिया जाएगा कि ठीक है, हाँ नोड्स जैसा कुछ होता है. देयर आर एक्चुअली रीजन्स जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, बट उसका सिग्निफिकेंस इज नॉट समथिंग मे बी यू विल बी क्वाइट कन्विंस्ड अबाउट कि अच्छा क्यों, क्या बता रहा है ये. अच्छा, नाउ यहां पर ऑब्जर्व करना. ठीक है, एज एन एडिशनल रिजल्ट ही बता रहा हूं मैं आपको. Number of nodes, or in fact before number, let me do a quick categorization. A given orbital can have two types of nodes. There are radial nodes and there are angular nodes. Now, as a counting, okay, as a formula, the count of number of nodes for an orbital is in the following manner. Radial nodes will be equal to n minus L minus 1, the count of it, number of radial nodes, and angular nodes would be L. ठीक है, n stands for principal quantum number of the orbital, while L stands for angular or azimuthal quantum number of the orbital. ठीक है, नाउ होता क्या है, what is meant by radial and angular nodes. यहां पर ऑब्जर्व करना, radial nodes, they are or they represent spherical surfaces ठीक है, स्फेरिकल शेप होता है इनका, स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं ये. दे आर स्फेरिकल सरफेसेस around nucleus at some distance from the nucleus at a particular distance where
रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी, मैं थोड़ा टाइम बाद समझाऊंगा। रेडियल प्रोबेबिलिटी, लेट मी राइट प्रोबेबिलिटी पूरा, अदरवाइज रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है। एंगुलर नोड्स क्या होते हैं? एंगुलर नोड्स, ठीक है, समटाइम्स दे आर प्लेन्स, ठीक है, whereas sometimes there can be some different surfaces also, so they can be planes, sometimes they can be cones, etc, ठीक है, बट सरफेस ही होंगे। काइंड surfaces, ठीक है, at some angles, ठीक है, some particular angles, where angular probability of finding electron is 0, ठीक है। सो ये इनका डेफिनेशन है, बट नोटिस करना, आपसे जो पूछा जाएगा दैट वुड बी समथिंग फ्रॉम अ मेंस का एग्जाम का लेवल का पर्सपेक्टिव, क्वाइट सिंपल। टिपिकली द क्वेश्चन आस्क्ड आर अराउंड द नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, काउंट ऑफ नोड्स फॉर एन ऑर्बिटल, जिसमें आपको रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स का ये फॉर्मूला यूज करना रहेगा। एंड डेफिनेटली इफ आई आस्क यू टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे, द आंसर विल बी n minus 1, n minus l minus 1 plus l क्या हो जाएगा, n minus 1, ठीक है। सो एज अ सिंपल प्रैक्टिस, इफ आई, ठीक है, यहाँ पर काइंड ऑफ मेक अ टेबल फॉर यू, ठीक है, विजुअलाइजेशन कराते हैं, बट चलो एक बार पहले टेबल बना लेते हैं। ऑर्बिटल रहेगा, इसका नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स अगर मैं आपसे पूछूंगा तो क्विकली मुझे आंसर दे दे जाना। ठीक है, as a quick practice of the values of n and l of an orbital, 1s ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोड्स होंगे, 0। कितने एंगुलर नोड्स होंगे, 0। 2s ऑर्बिटल्स में कितना हो गया, ये n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 0, 2s ऑर्बिटल, s के लिए l 0 होगा ना, तो कितना आ गया नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 1, एंड s मतलब l का वैल्यू 0, तो एंगुलर नोड्स कितना हो गया, 0, ठीक है। 2p में
n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1, तो कितना रेडियल नोड्स 0, एंड एंगुलर नोड्स कितना हो गया, l का वैल्यू 1 रहेगा, p ऑर्बिटल है, तो देयर विल बी 1 एंगुलर नोड। ठीक है, देन 3s में 3 minus 0 minus 1, there will be 2 radial nodes and no angular nodes. ठीक है, and so on so forth, 3p and 3d भी पूरा कर लेते हैं। चलो ठीक है, 3p में कितने होंगे, 3 minus 1 minus 1, there will be 1 radial node and p orbital का L कितना होता है 1, there will be 1 angular node। 3d में 3 minus 1 minus 1, सॉरी 3 minus 2 minus 1, L का वैल्यू 2 रहेगा ना d के लिए, तो there will be no radial node and there will be angular nodes कितने हो जाएंगे L, that will be 2। ठीक है, नाउ इस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हो, यू विल गेट द एंटायर काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ नोड्स फॉर अ गिवन ऑर्बिटल। एंड जैसे मैंने आपको बताया, अवॉइड वन काइंड ऑफ अ रॉन्ग क्वेश्चन दैट इज समहाउ प्रोपगेटिंग इन सम बुक्स। ठीक है, आप लोग कुछ सॉल्व करोगे कहीं पर तो आपको बुक्स मिल सकती हैं जिसमें आपको पूछ लिया जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर सेकंड शेल या थर्ड शेल, व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स फॉर अ थर्ड शेल, एंड फिर बैठ के इनको ऐड कर दिया, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन ही गलत है, उसका आंसर ही मत करना। ठीक है, somehow I've seen that question here and there, पता नहीं कहाँ से कोई स्टूडेंट्स लेके आ गए थे। The concept of node is defined for an orbital only। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इनको मैं विजुअलाइज कराऊंगा डायग्राम में, एंड वहीं से फिर हम अपना डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आगे का डेवलप करेंगे। ठीक है, सो आज का मैं आपको होमवर्क शेयर कर दूंगा बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। ठीक है, you should be able to solve the questions related with electronic configuration, they are quite simple, quite easy to work with। ठीक है, अच्छा कुछ डाउट्स है आप लोगों को तो पूछो, otherwise we'll close the lecture। हाँ बोलो हर्ष। सर मुझे ये डाउट था कि एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होने से स्टेबिलिटी ज्यादा कैसे होते हैं? एक्सचेंज एनर्जी इज एन एनर्जी दैट इज रिलीज्ड। ठीक है, तो जब एनर्जी रिलीज होता है सिस्टम का तो ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कम्स डाउन, एंड लेसर द एनर्जी मोर स्टेबल इज द सिस्टम। ओके, आंसर ये सिमेट्रिकल होने से भी स्टेबिलिटी, मतलब सिमेट्रिकल होने से ऐसे कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता है कि उसका स्टेबिलिटी हमारा शील्डिंग कम हो जाता है और फिर हाँ स्टेबिलिटी बढ़ता है? हाँ, तो उसमें बताया ना कि शील्डिंग कम हो जाएगा तो न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को बेटर अट्रैक्ट करेगा ना, एंड अट्रैक्शन फोर्स से भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। यस सर, दैट आई गॉट, बट मतलब सिमेट्री में कौन ऐसा उसका स्ट्रक्चर ही वैसा है कि शील्डिंग कम हो जाता है? हाँ ओके, मतलब आंसर व्हाट वाज मल्टीप्लिसिटी, एक और बता दीजिए ना। मल्टीप्लिसिटी इज यार, मतलब उसका एक्चुअली जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, बस आप एक फॉर्मूला ही नोटिस कर लो उसका। ओके सर। एक्चुअली मल्टीप्लिसिटी कब काम आता है, जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज कर रहे होते हो, मतलब उसमें ऐसे सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट्स, ये जो स्पेक्ट्रम के फाइन स्पेक्ट्रम्स ऑब्जर्व होते हैं उस टाइम पे इसको डेप्थ में समझा जाता है, बट क्योंकि वो आप करने नहीं वाले हो अभी, तो जस्ट नोटिस दैट फॉर्मूला दैट इट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा देन यश, व्हाट आर स्फेरिकल नोड्स? स्फेरिकल नोड्स
मतलब रेडियल नोड्स को ही स्फेरिकल नोड्स बोलते हैं। तो इनका विजुअलाइजेशन मैं अगली क्लास में कराता हूँ, ठीक है। आज तो टाइम खत्म हो गया, बट विजुअलाइजेशन कराऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, बुकलेट सोल्यूशन मैं भेजता हूँ अर्पित। जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ना उनके सोल्यूशंस मैं आज या कल, कल मैं एक्चुअली कल मेरा ऑफ है, कल मैं बना के भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हो ऋग्वेद? Sir, if we take a px orbital, then if an electron is in the positive x-axis हाँ ठीक है, ठीक region, है। then would it be able to go to the negative x-axis region? हाँ हाँ, मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया। मैं एक तुम्हें अच्छा सा वीडियो भेजता हूँ, उसको देखना, एंड that will then try to not answer your question, ठीक है। Okay, ठीक है वो sir. हाँ, अच्छा डाउट है तुम्हारा, ये रहता है, मतलब दिस इज, मतलब अच्छी बात है तुमको डाउट आ रहा है, मतलब इनफैक्ट many times this doubt is not something which comes in the minds of students। हाँ, ये भेजता हूँ मेरे को। अभी हैं क्या स्टूडेंट्स? And the shape of atoms. रुको, कहाँ गए? चैट विंडो पे भेज देता हूँ मैं, ठीक है। 5-10 मिनट का वीडियो है, बट इट्स अ गुड वर्थ वॉच, ठीक है। डोंट ट्राई टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, ठीक है। इट इज जस्ट फॉर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मैंने चैट पे भेजा है, इनफैक्ट मैं ग्रुप पे भी भेज देता हूँ, ठीक है। जो स्टूडेंट्स नहीं देख पाए वो लोग देख लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट गाइस, चलो टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।